Hello everyone, I am Verma and welcome to my own study channel. In the last classes, we have discussed about the two chapters in the mathematics of the 10th class. The first is the real number system and another is polynomials. Okay, so now we are going to discuss about the another chapter and this is the quadratic equation. I have skipped the chapter number 3 because this is the two variable linear equation chapter. And this is the quadratic equation chapter that is related to last chapter, that is the polynomial. So we are going to continue this chapter. Okay, so in the last session we have studied about the polynomials, its types, zeros and coefficient. Okay, this type of the method we have discussed in the last classes. मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट क्लास में हमने polynomials के बारे में डिस्कस किया था, कितने टाइप्स की होती है, जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. फर्स्टली मैं आपको एक बार बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So I have told you that whenever any type of the polynomials in form of ax square plus bx plus c equal to 0, अगर इसके फॉर्म में है, so we can say that this is the quadratic equation. But अगर देखिए दो टाइप की quadratic equation होती है, एक होती है जनरल quadratic equation, okay, and next is the second is standard quadratic equation. So there is the little difference between only that difference, दोनों की जो होती है वो इसी फॉर्म में होगी, ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है, और there is the a, b, c are the real number. What is this real number? We have discussed about the real number, which type of the real number in the first class. So now standard form. दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, there is no need to descending order of degree. Okay, it means degree मैंने बताया था the highest power of a polynomials variable. तो इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो अगर मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डजंट मैटर, वो भी आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट वी कैन सेट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सपोज दैट दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 and a and b and c is always from real number. These are the real number. And next where a not equal to 0, that is the first condition, a not equal to 0 and need to descending order. This is the standard form of quadratic equation. ये बात याद रखना. And this is also, there is also where a not equal to 0. यहाँ पे ध्यान रखना, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ये हमेशा ध्यान रखना. दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूरी है. अगर यही इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है bx plus ax square plus c equal to 0, सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो स्टैंडर्ड आपको इस तरीके से करना है. यस, लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द जीरोस. So what is the zeros? We have already discussed about zeros. जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और उस px का जो मान है अगर वो 0 हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, इट मींस वो क्या है, उसका zeros कहलाता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यूज एंड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक equation first, and next is zeros of quadratic equation. ओके, सो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. थोड़ा सा लिटिल में डिस्कस करते हैं. देखिए मैंने वैल्यूज के बारे में नहीं बताया था आपको. सो नाउ आई एम टेकिंग द वन एग्जांपल. सपोज दैट दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन.
find the value of px at x equal to -1 and x equal to 5। इस px से आपको px जो दे रखी है, सपोज दैट लेट अस px इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गिवन x स्क्वायर प्लस 2x plus 1, this is your px, okay? So now what is the value of p minus 1? So minus 1 whole square plus 2 into minus 1 plus 1, I am putting the value of x only, okay? So p minus 1 equal to 1 square, I mean this become the positive 1 because minus 1 and minus 1 multiplied minus 1 is become the positive 1. So 1 plus 2 into minus, it means minus 2 and plus 1, so this become p minus 1 equal to 2, 1 and 1 2, 2 minus 2 equal to 0. So this is your value, okay? This is your value at x equal to -1, okay? Next, now we are going to find out the p5 at the value of px, okay? So suppose that I am putting the value of the x, so 5x square plus 2 into 5 plus 1, so this become p5 equal to 25 plus 2 into 5, it means 10 and plus 1, so this become p5 equal to 25 and 10 35 and 1 36, so this is the 36, okay? Now this is also the value, but there is a little difference. Whenever I put the value of x, this type of the value of x and it's become equal to 0, अगर उस px का मान जो है वो अगर 0 हो जाता है, सो मैं उसे हम क्या कहेंगे, zeros कहेंगे, उस वैल्यू को हम zeros कहेंगे, 0 कहेंगे या zeros कहेंगे, ओके? एंड समटाइम दिस इज नोन एज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ये आपका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गॉट इट? यस। अब देखिए जीरो, इसी चीज को मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता था कि फाइंड द जीरोज ऑफ px, and what is the px? Same thing, x square plus 2x plus 1, and last time we have discussed about the one method that is important to find out the solution of solution of the quadratic equation, I mean zeros. So कैसे find out किया था? By the help of the factorization method in the midterm. So px equal to x square plus, what is the factorization? X plus x equal to 2x. We have already discussed in the previous section. So now there is the common x and x plus 1, and there is also one common, so x plus 1, okay, equal to 0. So means x plus 1 and px equal to x plus 1 and x plus 1 equal to 0. So we can say that what is the value of x? X equal to -1 and -1. These are the zeros. These are the zero. And sometimes this is known as the root also, root. Okay. So यही डिफरेंस होता है रूट और zeros में. ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको सिर्फ कुछ नहीं बताया इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ठीक है, वैल्यूज और जीरोस में क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने बताया है. तो दोनों इतने होते हैं कि वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आपको वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करनी है, और जीरोस फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो जीरोस की कुछ मेथड्स होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज. इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी, क्योंकि इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सम टाइम एग्जामिनर want to ask that please find out this is the quadratic equation or not. So how can prove that? So before चलो let's move to क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. तो एक्सरसाइज 1.1 एक बार ये पूछ करो वापस. So we have studied about the standard form and general form of the quadratic equation. So sometimes examiner want to ask you that this is the quadratic equation or not. So you can, how can find out that this is the quadratic equation? वो आपको मैंने बता दिया है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है और किसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यस. अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो जो मेथड है वो मैं आपको सिर्फ एक बार डिस्कस कर रहा हूँ. लेट्स मूव.
यस, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम कई टाइप से सोल्व कर सकते हैं। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन ऑफ मिड टर्म, जो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट दिया। मिड टर्म मींस bx वाली टर्म की हमें क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है बाय completing square method. That method will be discussed in the next exercise. I am talking about whenever we are discuss, तो आपको ये पता चले कि हाँ ये सब बताया था, इस टाइप के मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय Acharya method. Okay, and sometimes this method is known as quadratic equation method. Quadratic equation method. Okay, and I am telling you that what is the formula of this? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the formula of quadratic equation. Okay, so listen to me. ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला इसी मेथड से आया, सेकंड मेथड से आया। हाउ कैन टेल दिस फॉर्मूला? आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली द जनरल बेसिक मेथड हाउ कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द थ्री मेथड्स, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द वेरी सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड ये होता है। समटाइम्स दिस बिकम द कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए आपके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तब कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। एंड दिस इज द अनदर सिंपलेस्ट मेथड। और ये वाला जो मेथड है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल डिस्कस ओनली द वन एंड टू मोर क्वेश्चंस बाय द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, बट ऑल क्वेश्चन विल बी, आई मीन दिस इज माय एडवाइस, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या तो इस मेथड से या इस मेथड से सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज द वेरी फास्टेस्ट मेथड और हम इसमें कोई भी क्वेश्चन से वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था, मैंने कुछ नहीं बताया। नाउ वी आर गोइंग to move exercise 4.1 and which type of the question arrive in the exercise and sometimes how can solve this type of the question. Now we are going to discuss about it. Okay, so in the exercise 4.1, the first question examiner want to ask that check whether this is the quadratic equation or not. The first question in exercise 4.1, the first question, and the first question I will select. What is the type of the question? Check this is the quadratic equation or not. ये आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। So I will select the first question, fifth number. Okay, so I am writing 2x minus 1 and x minus 3 equal to x plus 5 and x minus 1. This is your question. I am repeating again question number 5. 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 and x minus 1. This is your questions. Okay, so let's know how to solve this question. There is no need to confusion about this is the only algebraic equation and आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करके इसको सोल्व कैसे करते हैं वो आपको करना है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स, ये कह सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है। आगे करके देखते हैं। सो व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट फ्रॉम टू दिस ब्रैकेट, ओके, सो ऑल एलिमेंट्स will be multiplied by the all elements of this bracket, यानी इस ब्रैकेट्स के जितने एलिमेंट है वो सारे इस ब्रैकेट के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, 1 by 1 मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले I will going to 2x and x, so it's become 2x square. Got it? ध्यान से देख लेना। नाउ इस एलिमेंट को इससे करना है, so 2x multiplied by minus 3, so it's become minus 2x into 3, it means 2 3 are 6x. Okay, now minus 1 multiplied by this, so it's become minus x, and
again -1 multiplied by -3, so minus minus plus and 3 बन गया 3. So this is the first solution of right hand side. You can solve LHS and RHS. आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, या RHS को अलग कीजिए, LHS को अलग कीजिए, उसके बाद में आप दोनों को सोल्व कीजिए, वही मेथड है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Same here, x is multiplied by x, so this become x square. Again x is multiplied by 5, so this become -5. Let me check, this is the, yes, -1. Okay, -5 and 5 into x, it means this become plus 5x and minus, sorry, 1 second, x into x square and x into 1, x into -1. So let me पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, x into x square and x into -1, so this become x, okay, minus x, and 5 into x, so this become plus 5x, and next 5 into 1, so this become minus 5. देखो तरीके से लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वैसे तो वो भी सही था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर. अब देखिए जो चीज पहले ड्रॉप आउट होने वाली उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए, दैट इज द माइनस x एंड दैट इज द माइनस x. सो व्हेनेवर दिस माइनस इज द बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मेथड, इस साइड में आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे. -1 एंड माइनस इक्वल की दोनों साइड में अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वी कैन ड्रॉप आउट, उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं. यस, सो और कोई है, और कुछ भी नहीं है. तो सोल्व दिस मेथड, 2x स्क्वायर minus 6x, और कोई इसको ले आते हैं. सो दिस प्लस 5x एंड दिस माइनस 5x, इसको इधर लेके आऊंगा इक्वल की, तो ये माइनस का हो जाएगा. नेक्स्ट दिस इज द प्लस 3 फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज -5 by this side, so इसको इधर लेके आएंगे, so minus become 5 plus 5, okay, and all equal to 0. So 2x square and this become -6 and -5, so -11x, okay, and this become 3 plus 5, it means plus 8 equal to 0. अब now tell me, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? So let's discuss. Px equal to 2x square minus 11x plus 8, then Px equal to is in form of ax square plus bx plus c equal to 0. देखिए ये इसके फॉर्म में है ना, ax square plus bx plus 0, इसकी जहां पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -11 है एंड c की वैल्यू आपकी प्लस 8 है. सो वी कैन से दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक. और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए a b c जो है वो रियल नंबर है, a b c इज ऑलवेज रियल नंबर. तो इसको तो जनरली आपको जो मेन कंडीशन है वो याद रखना है कि वेयर a नॉट इक्वल टू 0, सो px is quadratic equation. Okay, so this is the first question from exercise 4.1. this is the very simple question. There is the only calculation, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कैलकुलेशन था. तो कैलकुलेशन के जरिए हमने ये सोल्व किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं. बस आपको इतना ध्यान रखना है, whenever the any type of the polynomials in form of px form of ax square plus bx plus c equal to 0, where is the a not equal to 0, वहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब 0 हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, x plus another. Question number 7 from this exercise, x plus 2 whole cube equal to x plus 2 whole cube, 2x and bracket x minus 1, I think x square minus 1, sorry, x square minus 1. So this is our next question. So how much? So this is also the quadratic equation or no? This is the very simple. आपको ये solve करना है. We will discuss about all the factorization method, all the factors, जो भी factors वो हम discuss करेंगे अगले वीडियो में. We know very well a plus b whole cube. We have already discussed in the previous section. A cube plus b cube plus 3ab and bracket a plus b. This is the factor of a plus b whole cube. Okay, so solve this method. Okay, x plus 2 whole cube equal to 2x and x square minus 1. इसको हमें सोल्व करना है.
तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3ab. So 3 into x into b means 2, and again x plus 2. Okay, and from this side 2x and x square minus 1. Okay, so let's next step, x cube plus 2 2 ja 4 and 4 2 ja 8, this become 8 plus 3 2 ja 6x and x plus 2 in this bracket, and we have discussed. So let's show this equation, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, so this become 2x cube. Okay, and 2x is multiplied by -1, so this become -2x. Okay, this is the final step in this side. Yes, now x cube plus 8 and this becomes 6x square by multiply this bracket. जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x square and plus 6 2 जा 12x, and from this side x 2x cube minus 2x, जो कटने वाला उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, सभी को एक साइड में लेके आना है. सो लेके ही x क्यूब बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मेथड, x क्यूब आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय ट्रांसफॉर्मिंग. ओके, सो x क्यूब एंड दिस इज द पॉजिटिव, सो फ्रॉम दिस साइड 2x क्यूब. ठीक है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, देखिए मैं इसको पहले एक्स स्क्वायर को ले रहा हूँ बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. 6x स्क्वायर, उस साइड में कोई है नहीं, इस साइड में कोई भी नहीं है. ठीक है, इसके बाद में हमें x लेना है. सो फ्रॉम दिस साइड 12x, ये इस साइड में आपका 12x है और उस साइड से हमें -2 को लेके आना. सो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस, आई मीन माइनस बिकम टू प्लस 2x. ओके, इसके बाद में और कुछ बचा है, यस 8 बच गया है, तो प्लस 8 एंड इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ तो है कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा हूँ. वो वाले जो हैं उनको मैं इधर लेके आऊँ तो उधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा. यहाँ पे देखिए जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देयर इज द 1, सो -2 एंड +1 इट मींस -x क्यूब. यहाँ पे -x क्यूब हो गया प्लस नेक्स्ट 6x स्क्वायर एंड दिस बिकम प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0. सो लेट्स इसको हम px मान लेते हैं. px इक्वल टू -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0. 8 इक्वल टू 0 इज क्या, ये बताइए. अब देखिए क्या ये ax के फॉर्म में है, यहाँ पे तो क्यूब की पावर आ रही है, क्यूब नहीं आना चाहिए, सिर्फ हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. सो इज नॉट इन form of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so this is, so yeah, we can say that, so px is not a quadratic equation. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. और ये आपको कैसे पता चला, कि जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू विल बी एक्सरसाइज, आपको खुद को एक्सरसाइज करना है. बाकी जितने भी क्वेश्चन उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये करके आपको चेक करना है कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो था, ये वाला तो सारा मैटर लिखा हुआ था, लेकिन कई बार आपके सामने ये भी आ सकता है कि कुछ वर्ड्स में दिया हुआ हो और वर्ड्स में दिए हुए को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना हो. ठीक है, कि ये दिया हुआ है, आपको इसको किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है. या फिर हो सकता है कि सॉल्यूशन भी पूछ लिया जाए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वर्बल लिखे हैं, उनका वर्ड्स में लिखने के बाद में आपका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, और स्टेटमेंट्स को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है. जब तक आप स्टेटमेंट्स को नहीं समझ पाओगे तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, सो
मैं आपको बता देता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is in the middle is the one more than twice its breadth. So we need to length of the breadth of the plot. Okay? तो हमें क्या करना है कि हमें प्लॉट की जो है वो लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और सिर्फ इसमें फाइंड आउट नहीं करनी, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, आई होप आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। This is your rectangular plot. This is your rectangular plot. Question क्या कह रहा है कि the length of a plot is one more than the twice of the breadth. तो मान लेता हूँ कि ये जो इसकी breadth है, suppose that this is the x meter. This is the x meter. तो length कितनी होगी? The length is always twice and one more, so plus one. So this is your length. दोबारा से देख लीजिए, मैंने माना कि let breadth of plot is x meter, ये मैंने माना है x meter, ओके, is equal to x meter. So length of plot equal to twice of the breadth, so 2x and one more, so one more. So this is your length, ठीक है। ये length to width यहाँ पे इस तरीके से आ गया। As per the question क्या क्या है? Area is given, area equal to how much? 528 meter square. This is the given in this question. So आपको पता है कि this is your length and this is your breadth, and we know very well what is the area. Area is always equal to length into breadth. Okay, so area is equal to 528 equal to length. What is the length? 2x plus 1 and multiply by x. So we can say that solve this question. So this become 2x square plus 1. 2x square and this become plus x, x, and this is 528. So आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x square plus x equal to 528, मैंने एक बार स्क्वायर से लिखा है, so by the transforming plus x ये इधर हो जाएगा -5/2, ओके, एंड इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब इस इक्वेशन को आप चाहो तो सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में तो आपका यही सॉल्यूशन था, इतना ही आंसर था। सो इतना ही आंसर था, और अब हमें क्या करना है कि अगर इसको आगे सोल्व करना है तो मैंने जो 3 मेथड बताए हैं उन 3 मेथड्स में से आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका तो आंसर यही तरीका। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए आपको किस तरीके से करना है, ये वाला जो है इस x को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। इस x को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? देखिए 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x माइनस 528, ओके, इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस इसके फैक्टराइजेशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो मेथड बताया था इस तरीके से कि आपको x को यहाँ प्लस x को यहाँ पे पुट करना है, ये सिंबल यहाँ पे पुट करना है, इनको ऐसे करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 528 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर ये यहाँ पे आना चाहिए। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो इसके फैक्टराइजेशन आएंगे आपके 30x प्लस 30x माइनस 32x एंड माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बीच वाले के फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप एक बार लास्ट वाले देख लीजिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे हम, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। सो देयर इज द कॉमन, ओनली x इज द कॉमन, सो x इज द कॉमन, सो 2x प्लस 33 एंड व्हाट इज द कॉमन, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका -16 कॉमन है, -16 कॉमन है। तो 16 कॉमन है तो 16 कॉमन होगा तो यहाँ पे आएगा 2x, 16 2 जा 32
सो 2x एंड माइनस यहाँ पे क्या आएगा 33, आप मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हो। 16 3 48, 8 and 4 and 16 3 48 and 48 and 4 52. So yes, this is the right. So इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा, वैसे मैंने डायरेक्टली दिमाग लगा लिया कि ये वाला जो कॉमन है उधर ही वो वाला आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 33 इक्वल टू 0. So this become x minus 16. This is the first step, and another is 2x plus 33. This is the another step, and equal to 0. So we can say that हमारे पास में दो केस आ गए. If I will take the x minus equal to 0, x minus 16 equal to 0. So then what? x equal to 16. एक वैल्यू तो ये आ गई. दूसरा मैंने माना if x 2x if 2x plus 33 equal to 0, then यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. then 2x equal to minus 33 and x equal to minus 33 upon 2. So this value cannot be tagged because this is not real value. और not real means आपको पता है कि देखिए कोई भी लेंथ इन ब्रिज जो होता है, ये जो होती है ये रियल क्वांटिटीज होती है. रियल क्वांटिटीज को कभी भी हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं ले सकते. मैंने कभी भी यानी कोई भी आपको कभी ये नहीं कहेगा कि इस जो प्लॉट है, इस प्लॉट की जो लेंथ है वो -33 मीटर है. कोई भी ये नहीं कहेगा. ठीक है, तो ये वाले वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, ये वाले लेंगे. तो यहाँ पे x अपन ने क्या माना था, ब्रीथ माना था. सो ब्रीथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर. और यदि आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इज द लेंथ? सो लेंथ इज 2x plus 1, 2x plus 1. So 2 into 16 plus 1. So this become 32 plus 1. So this equal to 33 meter. This is your length in this question. तो इस तरीके से ये आपको सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हो. ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको क्या किया, इसका थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन बता दिया. ठीक है, वैसे तो इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो यही था. आपको चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एडवांस में बता दिया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से आपको सोल्व करना है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सो लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और बताऊंगा क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को डिस्कस करने हैं. सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन देखिए. कई बार इससे टाइप के क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, और यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सही बन जाती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव दिस क्वेश्चन. ए ट्रेन a train travels the distance of the 480 km at the uniform speed. If the speed had been the 8 km race, it would be have taken the 3 times more cover the same distance. We need to find out the speed of the train. It means आपको क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है. इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि ट्रेन जो है वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है. अब वो जो पहली बार 48 डिस्टेंस को कवर कर रही है तब तो उसकी कोई यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, कोई यूनिक स्पीड हो सकती है. और दूसरी बार जब वो कवर कर रही है, 2 बार कवर कर रही है, तो दूसरी बार जो कवर कर रही है उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है. क्या कर दी जाती है, लेस कर दी जाती है. तो मुझे तो आप इतना बता दो, अगर मैं किसी ट्रेन की स्पीड अगर कम होती है तो मुझे उस 48 किलोमीटर ट्रेवल करने में मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या जिसकी स्पीड ज्यादा होती है मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. ऑब्वियसली बात है कि जिसकी स्पीड कम होगी मुझे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कि पहली स्पीड से और दूसरी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 3 आवर है, क्योंकि बाकायदा कह रखा है कि अगर मैं स्पीड अगर कम कर देता हूं तो स्पीड कम करने से मेरी जो ट्रेन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मैं किस टाइम में कवर कर रहा हूँ, 3 आवर और ज्यादा लग रहे हैं. ठीक है, अगर मैं उसको स्पीड को कम कर देता हूँ तो 3 आवर और ज्यादा लग रहे हैं. सो लेट्स मूव. इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा. सो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ओके, x किलोमीटर पर आवर. ओके, अब केस फर्स्ट है, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, राइट द डिस्टेंस आल्सो. डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर. ओके, यस. अब देखिए क्या करते हैं, स्पीड आपकी कितनी होगी. फर्स्ट केस तो हो गया कि इस स्पीड में अगर मैं टाइम निकालूंगा, टाइम t1,
t1. So t1 equal to, we know very well, distance upon speed, यही फॉर्मूला होता है. सो डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया. पहला केस तो मेरे पास में ये आ गया कि जब मैं इसको इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ. सेकंड केस देखिए. सेकंड केस में क्या है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड. सेकंड में जो आपकी टाइम होगी, जो स्पीड है, पहले स्पीड देखते हैं. द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो कितनी हो जाती है, -8, लेस हो जाती है ना. सो इक्वल टू जाएगा x - 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, यानी 8 कम होगी. तो यहां पे जो टाइम निकल के आएगा मेरे पास में, टाइम t2 जो आएगा वो कितना आएगा, वही 480 अपॉन इस बार जो स्पीड है मेरी x - 8 है. ये मेरे पास में दूसरा टाइम आ गया. अब ध्यान रखना, ये जो टाइम होगा ये मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है. और ये जो टाइम होगा ये आपका लेस टाइम होगा. यानी इसमें आपकी जो टाइमिंग होगी थोड़ी कम आएगी, इसमें ज्यादा आएगी. ठीक है. और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 3 आवर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. इतना समझ में आ गया. बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इजी तरीके से. यस, एज पर द क्वेश्चन, जब मैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपका जो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम. सो डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल टू t3 मान लेते हैं उसको, वो आपका है 3 आवर्स. सो इसको मैं ये कह सकता हूँ एज पर द क्वेश्चन t3 इक्वल टू t2 minus t1, ये आएगा. ठीक है. सो कर देते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं. सो t3 कितना आएगा, 3 आवर, या इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, t2 minus t1, ये जो है ये आपके आएगा t3, यानी 3 आवर के इक्वल. ओके. सो t2 मींस 480, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, स्पेस चाहिएगा. 480 अपॉन x minus 8 minus 480 upon x, and this equal to 3 आवर. यस, इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे. x minus 8 and x, this is the LCM of both. तो इससे ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, इससे ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो x बचेगा. x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 480x माइनस, यहाँ पे देखिए x से x ड्रॉप आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे आएगा 480 और इसको मल्टीप्लाई करना है x minus 8 एंड इक्वल टू 3. ये आपका आ जाएगा. 3/1 कर सकते हैं यहाँ पे. यस. अब देखिए यहाँ पे इसको आगे और सोल्व करेंगे, तो इसको जब मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, सो ये आएगा मेरा 480x माइनस, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा 480x माइनस, जब इसको इससे कर रहा हूँ तो ये आएगा मेरा, मैं कैलकुलेट किया था मैंने अभी, तो ये आएगा मेरा 3840. ओके. अपॉन यहाँ पे इसको इससे कर रहा हूँ तो ये आएगा x² माइनस 8x, ये आ गया. और इधर अपना आएगा 3/1. ओके. यस. इसके बाद में देखिए ये तो ड्रॉप आउट हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये वाला इससे कट गया है. ये हमारे पास में बचा है और ये हमारे पास में बचा है. तो इसको जब मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, तो आगे सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास में, 3840 अपॉन x² माइनस 8x, इक्वल टू 3/1. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो देयर इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो ये इससे आ जाएगा 3x² माइनस 24x एंड दिस इज इक्वल टू 3840. नेक्स्ट 3x² माइनस 24x एंड माइनस 3840 इक्वल टू 0. ओके. यहाँ पे देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होता है कि अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो. यहाँ पे आपका क्या है, 3 कॉमन है. यहाँ पे कितना कॉमन है, 3. यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ इन तीनों में 3 है. सो इस इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 3
बाई 3, तो जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 8x माइनस, और ये आपका आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे सो दिस बिकम 1280 माइनस 1280 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन. और यहाँ पे x जो है वो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपके ट्रेन की स्पीड है. इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है आपको लगता होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने सोल्व किया. ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया कि हमें किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको चेक करना है. और अब मैंने इसमें एक तो सॉल्यूशन भी बताया आपको, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी बताया कि हम कैसे करें. अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे. सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल टेल यू अबाउट द all type of the method that will be help to solve this quadratic equation. Okay, that's enough for today. And in the last time I am telling you again, don't forget to like, share and comment and subscribe to my channel, because this is the very helpful to you. Okay, that's enough, and thank you so much. Have a nice day.